بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 8 ملمہ پڑھیں گے، جسے تحریر کیا ہے حاجرہ مسرور نے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے جو ان کے افسانوں کے مجموعے سب افسانے میرے سے لیا گیا ہے۔ افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں زندگی کے کسی ایک گوشے یا رخ کو کم سے کم الفاظ میں اجاگر کیا گیا ہو، یعنی افسانے کی خوبی اس کا اختصار ہے۔ گویا افسانہ اتنا مختصر ہونا چاہیے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانہ ملمہ پڑھنے سے پہلے اس کی مصنفہ حاجرہ مسرور کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ حاجرہ مسرور 17 جنوری 1929 لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد حاجرہ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا، یعنی کٹ گیا۔ حاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہیں، یعنی احمد ندیم قاسمی کے جاری کردہ رسالے نقوش کی مدیر رہیں۔ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی، جو کہ اخبار ڈان کے مدیر تھے، ان سے ہوئی۔ خواتین افسانہ نگاروں میں حاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں۔ معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے حاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہیں۔ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل وغیرہ۔ وہ لوگ کے نام سے ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ حاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میرے 1991 میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ حاجرہ مسرور بھرپور ادبی اور سماجی زندگی گزار کر 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں وفات پا گئیں اور کراچی ہی میں دفن ہوئی۔ آئیے اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے تدریسی مقاصد کا جائزہ لیں گے، اور اس سبق کے اہم مقاصد ہیں: معاشرے میں ظاہر و باطن کے دوگلے پن کی نشاندہی کرنا، کیونکہ بعض لوگوں کو دکھاوے کی عادت ہوتی ہے، اس کے نفسیاتی پس منظر کی نقاب کشائی کرنا، اور آپ کو افسانے کی صنف سے واقفیت دلانا ہے۔ ملمہ۔ ملمہ کا معنی ہے دکھاوا، جس پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو۔ ملمہ جس پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو، یعنی بناوٹی رکھ رکھاؤ یا دکھاوا۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں ابھی تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اکتا گئیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ زمین پر بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ متعجب، عجیب، اکتا گئیں، اکتا جانا، بیزار ہو جانا۔
बेंच कहते हैं मेज़ को, सैकड़ों, बहुत से, लाशों की तरह यानी बगैर हरकत किए या बगैर हरकत के पड़े हुए वहाँ सो रहे थे। वो आहिस्ता से कुली की तरफ मुड़ी जो इसका हल्का फुल्का अटैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। मुख्तसर, थोड़ा सा। कुली अब तक टिकट घर नहीं खुला, यो गाड़ी हमेशा लेट रहत। कुली ने अपनी धुंधली सी तनहा आंख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी और जैसे इसकी दूसरी फूटी हुई आंख का धसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। यो गाड़ी, ये गाड़ी हमेशा लेट रहती, यानी हमेशा लेट रहती है। वो कहता है, कुली कहता है कि ये गाड़ी जो है वो हमेशा लेट रहती है। धुंधली सी जो वाजे ना हो, धुंधली सी जो वाजे और साफ ना हो। गाड़ दी, जमा दी। धसा हुआ, अंदर को घुसा हुआ। बेमायगी, कम तरी। फड़कने लगा, हरकत करने लगा। तो कहाँ बैठूं मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। इसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नजरें बखेर दी। यहीं बैठ जाओ, यहाँ इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कुली की नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता। नफीस, उम्दा। ये सोचकर इसका दिल बैठने लगा और वो खामोशी से नीम तारीख सी काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का चरख चूं करते हुए यक्के की मैली चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीफ सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। इसका ख्याल फौरन ही नीम तारीख, कम रोशन, काली कलोटी, नहायत काली। अब ये मंजरकशी, मुसन्निफा मंजरकशी कर रही हैं, उस जगह के मनाजर को बयान कर रही हैं। कहती हैं कि लड़की का दिल जो है ये सोचकर बैठने लगा कि नीम तारीख यानी कम रोशन और काली कलोटी नहायत काली सड़क की तरफ देखने लगी वो लड़की, जिस पर इक्का दुक्का कोई कोई चरख चूं करते हुए ये है चरखे की आवाज़, चरख चूं, चरखे की आवाज़, यक्के, तांगे। कसीफ गंदी सी रोशनी, यानी यक्के की जो मैली कचैली चिमनियाँ थी उसमें से गंदी सी रोशनी निकल रही थी, मध्यम सी। सड़क पर रेंग रही थी, रेंगना, आहिस्ता चलना। इसका ख्याल फौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूँ इस वक्त? देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। अमीर कबीर, बहुत ज़्यादा अमीर, आज़ाद ख्याल, मॉडर्न। दर हकीकत असल में एक मिटे हुए ख़ानदान की, बदहाल ख़ानदान की काबिल यानी पढ़ी लिखी लेकिन परेशान हाल लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन की तरह। जैसे मुसन्निफा ने पीछे यक्के की चिमनियों के बारे में बयान किया है, उसी के साथ वो खुद को मुशाबा करे, खुद से मुखातब है। नहीं, रखे देत हैं सामान इसी जगह, कुली बोला। रखे देत हैं, रख देता हूँ। कुली कहता है कि मैं सामान इसी जगह पे रख देता हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, उसने किस कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चिरर चिरर पैदा हुई और एक साया लरसता हुआ भिड़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने इसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नौजवान टाई की गिरा कसता इस पर एक चुभती हुई नजर डालता टिकट घर के पीछे निकल गया।
घूरने लगी, गौर से देखने लगी। घूरना, गौर से देखना। करारे बूटों, सख्त बूटों की चिरर चिरर आवाज। लरजता हुआ, कांपता हुआ। कबूल सूरत, खूबसूरत। भारी ओवरकोट, लंबा अंग्रेजी कोट पहने हुए। भारी ओवरकोट, लंबा अंग्रेजी कोट पहने हुए उसी तरफ आ रहा था। बेसाख्ता, फौरन मुस्कुरा दी। लड़की के खिले हुए लाभ सुकड़ गए। होगा कोई अमीर ज्यादा, भला वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा। चुभती हुई नजर डालना, चुभती हुई नजर डालना, नजरें गाड़ देना। सुकड़ गए, खिले हुए लाभ सुकड़ गए, यानी वो संजीदा हो गए। अमीर ज़्यादा, अमीर का बेटा। उसने अपने ही आप में सोचा कि किसी अमीर का बेटा होगा और वो 3rd क्लास का यानी 3रे दर्जे का टिकट लेने के लिए क्यों आएगा। फिर हम सामान रख के जायत हैं। कुली लड़की की खामोशी से झंझलाकर बोला। जायत हैं, जाते हैं। कुली कहता है कि मैं सामान रख के फिर जाता हूँ। झंझलाकर, नाराज होकर बोला। बको मत, मैं यहाँ हरगिज ना बैठूंगी, वो ऊंची आवाज में बोल उठी। बको मत, बकवास ना करो। अचानक वही नौजवान टिकट करके पीछे से निकल आया। कुली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते, वो बोला। फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा। लड़की कुली से ही मुखातब थी। जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम, इंतज़ार का यानी ख़वातीन के इंतज़ार करने की जगह या इंतज़ार का। टिकट 2nd का चाहिए या इंटर का, नौजवान भी जैसे कुली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। सन्नाटे में आना, खामोश हो जाना। सन्नाटे में आना, खामोश हो जाना। कुली चलो, वो बड़े रोब से कहने लगी। रोब, दबदबा। आगे आगे कुली था और पीछे पीछे वो। इसकी ऊंची एड़ी की सैंडल जमीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। दिलचस्प, दिल को अच्छा लगने वाला शोर बखेर रही थी। मजूरी मेम साहब, कुली ने इसके चर्मी बटवे से मुतासर होकर कहा। मजूरी, मुआवजा यानी मजदूरी। चर्मी बटवा, चमड़े का बना हुआ। चर्मी बटवा, चमड़े का बना हुआ। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रूमाल से पेशानी पूंछ रही थी। सिंगार मेज, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कपकपा देने वाली सख्त सर्दी, रूमाल से पेशानी पूंछ रही थी यानी अपना माथा साफ कर रही थी। उसे पसीना आ रहा था क्योंकि वो मुलम्मा का मुजाहरा कर रही थी यानी दिखावा कर रही थी अमीर कबीर होने का। काहे, कुली के मोटे होंठ लटक गए। काहे, किस लिए। वो कहता है किस लिए नहीं मजदूरी मिलेगी। मोटे होंठ लटक गए यानी वो खामोश हो गया। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम। गाड़ी पर सामान भी रखवा देना और देखो जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना, आकर पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जी तलबा, हमारा आज का सबक इसी के साथ इख्तिताम पज़ीर होता है। कल इंशाल्लाह इसी सबक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।